ہے کہ وہ دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے جو کندھوں پہ کرام الکاتبین ہے ان کے ریکارڈ کے علاوہ بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں نا، یقین ہے سب کو کرام الکاتبین ریکارڈ کر رہے ہیں ہر چیز۔ اچھا کام کریں گے اچھے کاموں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں، برا کام کریں گے تو برے کاموں کی فہرست میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح خود گواہی دیں گے، بیان دیں گے کہ پروردگار عالم یہ جو انسان ہے وہ میرے ہاتھ گواہی دے گا کہ پروردگار اس انسان نے میرے ذریعے چوری کیا، غلط کام کیے۔ محمد وعلى محمد صلوات آپ آگے آ جائیں، یہ جو بڑے لڑکے ہیں آپ آگے آ جائیں۔ محمد وعلى محمد صلوات ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، خدا سے شکایت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر پروردگار فرما رہے ہیں، واضح کر کے فرما رہے ہیں، قیامت کے دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں۔ زبان کی بات آ گئی یہاں پر، زبان گواہی۔ عزیزان محترم، گناہان کبائر جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہماری زبان سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ گناہ ہے، زبان جو گناہ کرتی ہے نا، یہ وہ گناہ ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، بس بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا بہت بات ہے۔ عزیزان محترم، زبان پر قابو رکھنے والے لوگ بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں۔ صالحین کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اپنی زبانوں پر قابو ہوتا ہے۔ زبان پر قابو رکھنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، پیغمبر سے رسالت باواز بلندتر صلوات تاجدار رسالت سے لوگوں نے پوچھا کہ مولا بتائیں سب سے بہترین مسلمان کون؟ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اگر ہم زبان کو بطور آلہ گناہ اگر ہم دیکھیں تو آپ یقین کریں ہماری زبان کاٹ کر پھینک دینے کے قابل۔ جھوٹ بولتی ہے زبان، غیبت کرتی ہے زبان، چغلی کرتی ہے زبان، بدگمانی کرتی ہے، بدزبانی کرتی ہے زبان، لوگوں کے خلاف من گڑت کہانیاں بناتی ہے زبان، بڑے گناہ کرتی ہے زبان۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ اسی لیے میرے مولا امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں، محمد وعلى محمد صلوات مولا فرماتے ہیں اللسان ترجمان العقل، زبان جو ہوتی ہے وہ عقل کی ترجمانی ہوتی ہے، عقل کی ترجمانی۔
जिस तरह का अक्ल होगा उसी तरह की ज़बान, जिस तरह का फतूर हमारे दिमाग में होगा वैसे ही ज़बान होगी। चुगलियां का मुआशरे में आम है, हम सब महफिल में बैठ गए, किसी की अगर किसी का जिक्र आया, कोई बात छिड़ गई तो 10 फलान बंदे की तरफ से, 10 बातें फलान बंदे की तरफ से, 10 बंदे फलान बंदे के, 4-5 बंदे हो, 40-50 तोहमतें उस बेचारे लग जाती। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, फलान आदमी इस तरह, बड़े बड़े गुनाह हमारी ज़बान करती है। मौला ने इसलिए कहा अल-लिसानु तर्जुमानुल अक्ल, ज़बान अक्ल की तर्जुमान है। एक और रिवायत में मेरे मौला फरमाते हैं अल-लिसानु मीज़ानुल इंसान, ज़बान जो है इंसान का पैमाना है। ज़बान देखिए, कहते हैं कि ज़बान की वजह से ही इंसान जन्नत को भी पा लेता है, और ज़बान एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जहन्नम में भी इंसान चला जाए। ज़बान चुगली करती है, ज़बान बहतान लगाती है, ज़बान इल्ज़ाम करती है, और हमारा मुआशरा जो है ऐसे जो बदज़ुबानी करते हैं ऐसे को बड़ा बहादुर समझते। इहद करें, आज अब्बास के परचम तले आकर उम्मुल बनीन को पुरसा देने के लिए आए, कितना बड़ा अच्छा है। कोशिश करें आज से ही, अभी से ही कोशिश करें कि आज के बाद हम जो है लोगों के बारे में अच्छी बातें किया। एक पोशी करना, किसी की अगर आप में किसी के अंदर कोई खामी नजर आती है, कोई खराबी नजर आती है, कोई बुराई नजर आती है, तो परवरदिगार कहता है उन खामियों पर पर्दा डाल, उन खामियों की पर्दापोशी करो। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की सिफत में से है। अल्लाह सत्तार अल-उयूब है, अल्लाह ऐब छुपाने वाला है, अल्लाह गलतियां छुपाता। अल्लाह ये नहीं कहता है कि किसी की गलती को लाकर तुम आगे करो। अगर किसी की गलती नजर आती है तो कोशिश करो उस गलती को खत्म कर दो, ऐसे रहो जैसे नजर है। परवरदिगार अगर बड़ा सत्तार अल-उयूब है, बड़ा सत्तार अल-उयूब है, तो ज़बान ऐसी चीज है जो बड़े बड़े गुनाह से गीबत करती है। अज़ीज़ मुहतरम, गीबत गुनाहान कबाइर में सबसे बड़ा गुनाह है। आपने सुना होगा अल-गिनाउ अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत एक ऐसी चीज है जो जिना से भी बदतरीन गुनाह है। और ये कौन सा अंजाम देता है? आपकी ज़बान पता ही नहीं चलता, बस 2 जुमले बोलती है, आपके नाम-ए-अमल में गुनाह दर्ज हो। हजरत लुक़मान हकीम बनी इसराइल के ज़माने में, मुख्तसर मजलिस पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा पढ़ने का ख्वाहिश नहीं, बस चंद ही जुमले पढ़कर आपकी ज़रूरतों को तमाम करूँगा। हजरत लुक़मान हकीम बनी इसराइल के ज़माने में बनी इसराइल के किसी बुजुर्ग के गुलाम हुआ हजरत लुक़मान हकीम। तो हजरत लुक़मान के मालिक ने एक दिन लुक़मान से कहा कि लुक़मान, इस दुम्बे को ले जाकर इसके गोश्त में से सबसे अच्छा गोश्त लेकर अच्छा 2 गोश्त ऐसे लेके आओ जो इसके जिस्म में, इसके गोश्त में अच्छे। लुक़मान लेके गए, दुम्बे को लुक़मान ने ज़िबा कर दिया। ज़िबा करके उस दुम्बे की ज़ुबान और उस दुम्बे का दिल लेकर मालिक के पास आए। तवज्जो चाहिए आप। हज़रत लुक़मान उस जानवर को ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त में से ज़बान और दिल निकाल कर अपने मालिक के पास लेकर आए, पेश कर दिया। मालिक ने उस गोश्त को लिया, लेकर चंद दिनों बाद उस मालिक ने फिर कहा लुक़मान से, लुक़मान इस जानवर को ले जा, इस दुम्बे को लेकर जाकर इसके गोश्त में से 2 बदतरीन गोश्त लेकर आ जा। लुक़मान गए, ज़िबा किया जानवर को, फिर से ज़ुबान और दिल लेकर मालिक के पास। जज़ाकल्लाह, क्या कहने। बड़ी हैरत होगी कि जब उसने अच्छा गोश्त मांगा तब भी लुक़मान ने ज़ुबान और दिल लेकर आया। जब उसने बुरा गोश्त मांगा, बदतरीन गोश्त मांगा, जिसको लोग पसंद नहीं करते हो या उसने जिस हिसाब से बोला हो, जब बुरा गोश्त मांगा तब भी लुक़मान दिल और ज़ुबान लेकर आया।
उस मालिक ने पूछा लुकमान इसमें क्या हिकमत है, क्या बात है, जब मैंने अच्छा गोश्त मांगा था तब भी तुमने जबान और दिल लेके आए थे, आज मैंने बुरा गोश्त मांगा, बदतरीन गोश्त मांगा तब भी तुम जबान और दिल लेकर आए, क्या राज है इसके पीछे? लुकमान ने कहा जबान और दिल ऐसी चीजें हैं, अगर ये दोनों एक साथ हो जाए तो सबसे अच्छा गोश्त कहलाता है। जज़ाकल्लाह, क्या कहना? जबान और दिल अगर एक हो जाए तो सबसे अच्छा गोश्त है, अगर दिल में कुछ और जबान पर कुछ और, अगर इनमें एक जैसी खासियत ना हो, एक जैसी बात ना हो, तो ये बदतरीन चीज है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने? माल का जो मालिक था बड़ा मुतासिर हो गया उनकी इस हिकमत बड़ी बातों से, और इसी में बड़ा मुतासिर हो गया और लुकमान हकीम को आजाद कर दिया। इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। उस लुकमान की जो बात थी, आज हमारे मुआशरे हम सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल में कुछ और होता है, ज़बान पर कुछ। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल की तर्जुमा करती है, जो आपके अक्ल की तर्जुमा करती है। इसीलिए मेरे मौलाना ने कहा था अल-लिसानु तर्जुमान अक्ल। ज़बान पर काबू पाना, ज़बान पर कंट्रोल रखना बड़े बड़े लोगों का कोशिश करके गीबत से बचा जाए, कोशिश करके झूठे इल्जामात से बचा जाए, कोशिश की जाए कि किसी पर कि आपकी गुफ्तगू के दौरान किसी पर कोई तहमत तो नहीं लग रही, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं लग रही, किसी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा। कोशिश करें, आप थोड़ी बहुत कोशिश करते जाएंगे तो आप एक दिन इन चीजों से मुकम्मल परहेज करने वाले बन जाएंगे। आप चाह कर भी किसी के खिलाफ ऐसी बात नहीं, किसी पर तहमत नहीं लगाएंगे, किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा नहीं लगाएंगे। तो ये है ज़बान। बदजुबानी की बड़ी मजम्मत की गई है, इस्लाम में बड़ी मजम्मत की गई है। आए परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सबको बदजुबानी से बचने की तौफीक अता फरमाया। आमीन अल्लाह। परवरदिगार बाबल हवाइज हजरत अब्बास का वास्ता, अब्बास के शानों का वास्ता, अब्बास की की इस्मत का वास्ता, परवरदिगार हमारे गुनाहों ने कबायर सगायर को माफ फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु फरज शरीफ की ताजल ज़हूर फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। इस्लाम से अली खान नाई, सादात इस्लाम उलमाए किराम और तमाम अफराद जो मिलत के लिए काम कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी तौफीक़ात खैर में इजाफा फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। दुनिया में इस वक्त हुसैन हुसैन की आवाज़ें आ रही हैं, दुनिया के हर गोशे में, हर मुल्क में हुसैन हुसैन। परवरदिगार तमाम आज़ादारों की हिफाजत फरमाया अल्लाह। आमीन। की हिफाजत फरमाया अल्लाह। आमीन। इस महफिल में शरीक मोमिन और मोमिनात के जिस्मों में कोई बीमारी हो तो परवरदिगार बिहर के बीमारी है सैयद सज्जाद तुझे शिफा कामिला आजिला अता फरमाया अल्लाह। आमीन। हमारे मोहल्ले में या मशरिक़ तक मग़रिब शुमाल तक जुनूब शमल हदर करम में से कोई मोमिन या मोमिन इस वक्त बीमार हैं, अलील हैं, तो परवरदिगार उन्हें शिफा कामिला अता फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। हमारे हाजी इब्राहिम हमारे महफिलों के ज़ीनत थे, काफ़ी अरसे से अलील हैं, परवरदिगार सज्जाद की बीमारी का वास्ता देकर तुझसे दुआ करते हैं, परवरदिगार उन्हें शिफा कामिला अता फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। और हमारे कुछ ज़ाकिरीन हमारी महफिल के ज़ीनत थे, जैसे मरहूम अखुन रज़ा इस दुनिया से चले गए, महफिल ही खाली हो गई, परवरदिगार उन्हें जवार आइमा में जगह अता फरमाया अल्लाह। आमीन अल्लाह। एक बड़े आज़ादा हमसे बिछड़ गए जो परवरदिगार उनके नामे अमाल में अगर कोई गुनाह हो जिसकी वजह से उन्हें कोई सज़ा मिलनी हो तो परवरदिगार उनके गुनाहों को अब्बास के शानों का वास्ता देकर दुआ करते हैं, परवरदिगार उनके गुनाहों को माफ़ फरमाकर जन्नत में जगह दी अल्लाह। आमीन अल्लाह। एक नौजवान ने दुआ के लिए अपील की है, वो अक्सर बीमार रहते हैं, तबीयत उनकी नासाज रहती है, परवरदिगार
حسین کے اکبر کا واسطہ، اکبر کی جوانی کا واسطہ، سجاد کی بیماری کا واسطہ، اسے شفا کا اللہ عطا فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ کے لیے جتنے بھی مومنین و مومنات نے التماس کی ہے پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو روا فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ تمام مسائل کو دور فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی کرتی ہے علی اصغر کا واسطہ دے کر اپنے والد محترم کی مغفرت کے لیے اور اپنی ماں کی سلامتی کے لیے پروردگار یہ جو بھی مومنہ ہے پروردگار ان کے والد محترم کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمایا اللہ۔ آمین۔ والدہ محترمہ کا سایہ ان کے سروں پر پادیر سلامت رکھیا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ اور محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی ایک اور مومن ہے یا مومنہ یہ کہا وہ دعا کے لیے اپیل کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی سلامتی کے لیے دعائیں چاہتے ہیں، تو پروردگار ان کے والدین کو اصغر کے والدین کے صدقے میں، اکبر کے والدین کے صدقے میں صحت سلامت رکھیا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ اور بیمار کربلا سید سجاد کا واسطہ دے کر ایک مومن دعا کے لیے التماس کر رہے ہیں کہ میری اور میرے بیٹے کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں پروردگار علی اکبر کے حق کا واسطہ، اکبر کے خون کا واسطہ، اکبر کی شہادت کا واسطہ پروردگار انہیں سلامت رکھیا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ درود پڑھیں اللہم صلی علی کی جوانی کا واسطہ دے کر دعا کے لیے التماس کر رہے ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں، ان کی بہت ساری پریشانیاں ہیں پروردگارہ۔ زینب کی پریشانیوں کا واسطہ، سجاد کی پریشانیوں کا واسطہ، جو شام کے گلیوں میں، شام کے بازاروں میں سجاد کو جو پریشانیاں ہو گئی انہی پریشانیوں کا واسطہ پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ اور ایک مومن ہے یا مومنہ یہ منشن نہیں کیا ہے تو وہ دعا کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں پروردگار۔ کربلا میں رباب کی گود اجڑ گئی تھی، اسی کے صدقے میں اصغر کی شہادت پر رباب کی گود اجڑ گئی پروردگار۔ رباب کی گود کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ اس مومن یا مومنہ کے لیے اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ میں اگر کوئی اور بھی مومن یا مومنہ ہو جو اولاد جیسے نعمت سے محروم ہو تو پروردگار انہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ جو صاحب اولاد ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں، ان کی اولاد کو سلامت رکھیا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ سیرت اکبر، سیرت زینب اور سیرت قاسم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ آمین یا اللہ۔ اللہم صلی علی برائے طلب حاجات توسل بحق آل محمد باواز بلندتر صلوات عزیزان محترم، صاحب مرثیہ نے اپنی مرثیہ میں باب الحوائج حضرت عباس کا ذکر کیا۔ عباس کے مسائل پڑھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ عباس کوئی آسان چیز نہیں۔ عزیزان محترم، اہل بیت ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اہل بیت کے لیے عباس مشکل کشا ہے۔ اہل بیت پر جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے عباس آگے آتا ہے۔ عباس حسین کے ایسے بھائی جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔
अज़ीज़ मोहतरम मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, मैंने रिवायत में पढ़ी कि जब हज़रत अब्बास की विलादत हुई ना, अब्बास की विलादत भी कैसे हुई, अली और ज़हरा ने दुआओं में मांगा था अब्बास को। अली नमाज शब में रो रो कर अल्लाह से मांगते थे कि परवरदिगार मेरे हुसैन के लिए ऐसा सहारा देना जो दुनिया के सारे सहारे का पाशा है। अब्बास ऐसी चीज है, ज़हरा ने दुआओं में मांगा था अब्बास को, ज़हरा ने दुआओं में मांगा था परवरदिगार मेरे हुसैन के लिए एक ऐसा भाई दे जो जुर्रत और जलाल में अली मुर्तज़ा हो। जब अब्बास की विलादत हुई तो मदीने में शोर हो गया, मदीने में हल्ला गुल्ला हो गया कि अमीरों के घर में एक शहजादा आया। अब्बास की विलादत हुई, मदीने में शोर हुआ कि अमीरों के घर में एक शहजादा आया है। उम्मुल बनैन ने कोशिश की, अब्बास ने आंखें नहीं खोली। हसन मुश्तबा ने कोशिश की, अब्बास ने आंखें नहीं खोली। अली मुर्तज़ा ने कोशिश की, अब्बास ने आंखें नहीं खोली। फिर मदीने में शोर हुआ कि अमीरों के शहजादे ने अभी तक आंखें नहीं खोली, अमीरों के शहजादे ने अभी तक आंखें नहीं खोली। इतने में खामिस से अहले बा मौला हुसैन आते हैं, आकर कहते हैं अमीरों थोड़ा हट जाओ, ये गरीब है, गरीब के लिए अमीरों हट जाओ। बड़ा झूला है, हट जाओ, ये गरीब है, गरीब के लिए आंखें खोलेगा। जब हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया तो अब्बास ने सबसे पहले हुसैन के लिए आंखें खोली, हुसैन के चेहरे पर निगाह डाली और ज़ियारत की। ऐ करबला में यकता व तन्हा होने वाले हुसैन, मेरा पहला सलाम। अब्बास सुबह आशूर मौला से इजाजत लेते हैं, मौला मुझे करबला में जंग करने की इजाजत दीजिए, मौला मैं शहीद होना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। हुसैन कहते नहीं अब्बास, तू मेरी फौज का सालार है, तू मेरी फौज का अलमदार है, मैं तुझे कैसे इजाजत दे सकता हूँ। साथ जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हुसैन लाशें उठाकर खेमे में ला रहे हैं। जवाना ने बनी हाशिम से पहले हबीब की जब लाश आती है तो अब्बास गिरिया करके कहते हैं मौला हबीब भी ना रहा, बुजुर्ग सहाबी भी चले जा रहे हैं, अब तो मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन कहते हैं मैं अब्बास, तू मेरी फौज का अलमदार है, मैं तुझे कैसे इजाजत दे सकता हूँ। अज़ादरान इमाम हुसैन, जवाना ने बनी हाशिम की बारी आती है, जवाना ने बनी हाशिम की बारी आती है, अकबर की लाश आती है, अब्बास इजाजत मांगता है, हुसैन नहीं देता है। कासिम की लाश आई, ओनो मोहम्मद की लाशें आई, अब्बास ने इजाजत मांगी, मौला ने इजाजत नहीं दी। अज़ादारों, एक ऐसा वक्त आया, अब्बास एक ऐसे खीमे में चले गए जहां पर मशकीज़ें रखी गई थी। 7 मुहर्रम से पहले जो मशकीज़ें रखे, पानी के मशकीज़ें रखे थे, अब्बास जाकर वहां जाकर एक अजीब सा मंजर देखता है। 7 मुहर्रम से जो मशकीज़ें रखी थी, उसका जो पानी टपका था जमीन पर, कुछ बच्चे इतने प्यासे थे, कपड़े उतार कर उस नदी में अपने जिस्म को रगड़ रहे। लेकिन दूसरी तरफ सकीना कुछ मशकीज़ों को हिला रही थी। अब्बास ने कहा बीबी ये क्या कर रही है, सकीना ये क्या कर रही है? तो सकीना कहती है अब्बास चाचा मैं देखना चाहती हूँ कि किसी मशकीज़े में कहीं थोड़ा सा पानी नहीं गया। हुसैन कहते हैं मेरी बच्ची, अब्बास कहते हैं मेरी बच्ची अगर तू इतनी प्यासी है तो मौला से मुझे पानी लेने की इजाजत दे। सकीना मशकीज़ा उठाती है, अब्बास सकीना को उठाते हैं हुसैन के पास आते, हुसैन से
अब्बास कहता है मौला सकीना इतनी प्यासी है, मैं इसके लिए थोड़ा पानी लाना चाहता हूँ, अब तो मुझे इजाजत दीजिए। तो हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तुझे कैसे इजाजत दूँ, तू मेरी फौज का अलमदार है। तो अब्बास कहता है मौला मुझे वो फौज दिखाए जिसका मैं अलमदार हूँ। फौज ही ना रही तो मैं किस चीज का अलमदार हूँ। अब किस्सा हुसैन के पास से अब्बास रवाना होते हैं, ज़ैनब से इजाजत लेकर अब्बास मैदान की तरफ रवाना होते हैं। देखिए मंजर देखिए, सकीना मशकीज़ा अब्बास के हवाला करती है, अब्बास को हुसैन घोड़े पर बिठाकर तैयार करती है। सकीना छोटे छोटे बच्चों को बाहर लाती है, हाथ में कूजे थमाती है और कहती है मेरा चाचा पानी लेने जा रहा है। सकीना सकीना बच्चों के हाथों में कूजे थमाती है और कहती है बच्चों इंतजार करो, मेरे चाचा पानी लेने जाते हैं। अब्बास आगे बढ़ते हैं, सकीना बच्चों के हाथों में कूजे थमाती है, अब्बास आगे जाता है। थोड़ी देर बाद अलम में एक नशीब आता है, तो बच्चों से सकीना कहती है मेरे चाचा फुरात में उतर गए। थोड़ी देर बाद अलम फिर से बुलंद होता है, तो सकीना कहती है मेरे चाचा